Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 8th. Our subject is SST and the topic which we are discussing from the past so many videos is your civics chapter 1 which is the Indian Constitution. किसके बारे में जान रहे हैं हम? भारतीय संविधान के बारे में जान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, हाउ इट इज मेड, व्हेन इट इज मेड एंड वाई इट इज ऑफ सो मच इम्पॉर्टेंस. वी हैव केम टू न्यू अबाउट द स्ट्रगल ऑफ नेपाल, okay, by making it a democratic country. For making Nepal a democratic country, they fighted a lot. Even we also fought for our freedom, and after when we got the independence, we finally decided to make our country a democratic country and to make constitution for our country. In the previous videos we have discussed different topics. Let me just tell you what we have discussed. We discussed the key features of the Indian Constitution: federalism, parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights, the fundamental rights in the Indian Constitution. We read in the last class about the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and education rights, and rights to constitutional remedies. Okay, so today we will be starting from the page 166, secularism. I hope I have given you enough of introduction. So as always, before starting the class, let me ask all of you that how are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home. Take out this book of SST and keep a pencil in your hand. So let us begin our class now. So बेटा, जब हम सेकुलरिज्म के बारे में बात करते हैं, इस शब्द को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष. अब आप जब धर्मनिरपेक्ष शब्द सुनेंगे या सेक्युलर का मतलब सुनेंगे, उसका मतलब यही होगा कि वो राष्ट्र, राज्य, देश जो कि किसी एक धर्म को फॉलो न करता हो, जो कि धर्म से निरपेक्ष हो, धर्म से दूर हो, किसी भी धर्म को अपना नेशनल रिलीजन ना मानता हो, दैट द कंट्री और स्टेट इज नॉट मेंटेनिंग अ सिंगल रिलीजन एज देयर रिलीजन. ओके, दे आर रेस्पेक्टिंग and they are adopting all the religions which are present. Okay, the one of the most important example is our country, which is India. India is a secular country. Okay, so let us read what is written here. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. But a secular जो स्टेट होता है, जो देश होता है, स्टेट का मतलब यहाँ पर देश है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसा एक स्टेट जो कि किसी एक धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म या राज्य धर्म नहीं मानता हो, किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता हो, डज नॉट प्रमोट अ सिंगल रिलीजन, इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू ऑल द रिलीजन्स. ओके, you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopt for itself. Now you can understand, okay? You now understand the ways in which a country history often determines the kind of constitution that's a country adopt for itself. जो हमारी कंट्री की हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री में हमने ये जाना कि हमारी कंट्री में बहुत सारी रिलीजन के लोग, रीजन के लोग, स्टेट के लोग, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, वो स्टेट, वो कंट्री एक रिलीजन को कैसे प्रमोट करेगी. तो ये चीज़ें हम अपनी हिस्ट्री से ही सीखते आ रहे हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू एडहेर इट. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक क्रूशल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सामने आइडियल्स प्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सामने बाध्य होकर, या आप कह सकते हैं हम इसको मान्य मानकर इसको हम फॉलो करें जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है. आपको इस देश में हर तरीके की फ्रीडम दी गई है और अब इस कंट्री को एक सेक्युलर कंट्री भी घोषित किया गया है. इट मीन्स दैट एक धर्म का प्रमोशन यहाँ पर नहीं है.
किसी भी धर्म को यहाँ प्रमोट नहीं किया गया है, सभी धर्म को उतनी ही इम्पोर्टेंस मिली है। सो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या। तो ये एक, और हमारी कंट्री एक्चुअल में है क्या, हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। ओके, या इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। ओके, हमें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, we will have to adhere it. Okay, we will have to follow the rules, but even the representatives which you have chose, they will also have to follow the constitutional rules and regulations. So keep this thing in your mind that representatives are not so away from all these rules and regulations. They will also have to follow the constitutional rules and regulations. Okay, Indian constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Yes, if you will go deep into the topic, you will came to know that there is a law and there is a procedure of amendment of the constitution, जिससे आप constitution को amend कर सकते हैं। constitution में आप प्रावधान ला सकते हैं, कोई भी प्रावधान आप हटा सकते हैं, तो वो एक पूरा constitutional procedure होता है। ओके, यस, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम अमेंड किया जा सकता है, दैट इज नॉट सो ईजी। ओके, इफ इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, या ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगा आपने कुछ चेंज कर दिया अपनी मर्जी से, नो, देयर इज अ बिग प्रोसेस। और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज है वो फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री में भी चेंज लेके आता है। कोई भी अमेंडमेंट अगर होता है तो हम पे उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए हर प्रकार से सोच समझकर ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको सेक्युलरिज्म के बारे में समझ में आया होगा, सेक्युलरिज्म क्या होता है। ओके, एंड हमारी कंट्री सेक्युलर कैसे है, कैसे उसे सेक्युलर कहा गया है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड आर कॉलिंग आवर कंट्री सेक्युलर। या नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। आपको ये याद रखना है कि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जो कि किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती है, सभी धर्म को इक्वल इम्पोर्टेंस देती है। यस, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, सरकार की, गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी तरफ कुछ ड्यूटीज है, तो हमारी भी तो ड्यूटीज होनी चाहिए उनकी तरफ। यस और नो? यस। सो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कुछ हमें यहाँ दी गई है, जिसको कि आपको रीड करना है और अपने मन में, अपने दिल में इन्हें जगह देनी है और हमेशा इन्हें फॉलो करना है। These are called fundamental duties. If you have given the rights, then you will have to do the duty also. This is your duty to follow these duty, and the rights are already in your account. Okay. Rights and duties are interrelated or they must go together. Okay. आपको अधिकार मिला है तो आपको ड्यूटी भी मिलेगी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए और दोनों चीजें एक साथ ही चलती हैं। For the progress of nation, it is very important for citizen to perform certain duties. एक नेशन की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिटीजन इन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे ताकि प्रोग्रेस हो सके नेशन की, हमारे राष्ट्र की प्रोग्रेस हो सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिटीजन इन ड्यूटीज़ को फॉलो करे, इन्हें अबाइड करे, इनके अनुसार ही चले। Our constitution has listed the following fundamental duties of citizen. और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये एक लिस्ट बनाई है फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, सिटीजन के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए ये ड्यूटीज बनाई है। नाउ डू यू लर्न पार्ट इज हियर इन दिस बॉक्स। The right to property was initially a fundamental right provided to the people under the Indian Constitution. It was taken away by the 44th Amendment of the Constitution. It is now a legal right. Okay, तो क्या बात की जा रही है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स थे आपके, इनमें से एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। ओके,
राइट टू प्रॉपर्टी नाम का भी आपका एक फंडामेंटल राइट था, बट उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। सो अब आपके पास कितने राइट्स हुए? यस, यू आर हैविंग टोटल 6 राइट्स। और अगर राइट टू प्रॉपर्टी भी होता तो आपके टोटल 7 राइट्स होते, बट इसे हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। ओके, यस। So the first is to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national anthem. आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अपने संविधान की आपको रिस्पेक्ट करनी है, उसके आइडियल्स, उसके इंस्टीट्यूशंस को मानना है, उसकी राष्ट्रगान की आपको रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेशनल एंथम की, जन गण मन की आपको रिस्पेक्ट करनी है, अपनी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की आपको रिस्पेक्ट करनी है, जिसने आपको इतने सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं। To cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. हमें क्या करना है? उन धारणाओं को, उन बातों को, या आप कह सकते हैं उन वैल्यूज़ को प्रमोट करना है जिसने हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को प्रमोट किया है, हमारे देश की आज़ादी को प्रमोट किया है। ओके, सो हमें इन चीज़ों को भी प्रमोट करना है, ये भी हमारी ड्यूटी है। ओके, यस। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. क्या करना है? हमें देश की sovereignty को भी प्रोटेक्ट करना है, देश की यूनिटी, ओके, जो एकता है, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। इन अ नटशेल यू कैन से दैट हमें देश में ये जो भाईचारा है, ये जो बंधुत्व है, इसको बनाकर हमें रखना है हमेशा के लिए, अपने पास में, अपने साथ में, हमारे देश में एकता को हमें बना के रखना है। ओके, और ऐसा नहीं है कि देश में एकता बनाने के लिए अब निकल गए, नो, आप अपनी जगह पर रहकर ही एकता बना सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज से दूर रही है और सबकी रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ओके, यस। Now the fourth is to defend the country and render national services when called upon to do so. कल को अगर हमारे देश पर कोई आपदा आती है, if there is any danger on our country and if you are called to help or to give your services, this is your fundamental duty to go and to give your service, because you are a part of this country and the country is calling you. Okay, the country is calling you for saving it, so it is your duty to go and to save your country whenever the country asks you to do so. Okay, yeah. To promote harmony. To promote harmony का मतलब है बेटा, जो भाईचारा, जो बंधुत्व है, जो एकता है हमारे बीच में, अनेकता में एकता, उसे हमेशा बनाए रखना है, हमें तोड़ना नहीं है, हमें छिन्न भिन्न नहीं हो जाना है। We will have to stay together, we will have to be integrated and we all will have to work together. We will have to abide all the fundamental duties and we will have to promote the harmony. Harmony में हम सबको साथ में चलना है, एकता के साथ हमें रहना है, because this integration, this harmony helps you a lot whenever you want to go against anything. क्या कहते थे ना हम क्लास में भी, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी की टीचर से प्रॉब्लम है तो हम सब बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे, मैं मेरी बात बता रही हूँ, फिर क्या कर लेते थे, कुछ पेपर पे लिख के कि हमें ऐसे दिक्कत है, सबके साइन करवा देते थे। अब क्या हो गया, सबकी एकता हो गई, सब एक साथ हो गए। सो क्या है, उस पर एक्शन हो सकता है उस चीज़ पे, बट अगर एक अकेला इंसान ऐसा कुछ करेगा तो एक्शन शायद ना हो पाए। ओके, ना हो पाए कोई एक्शन। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द नेक्स्ट। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। क्या करना है बेटा, हमें प्रिजर्व करना है हमारे वैल्यू को, हमें वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है, संरक्षण करना है किसका, रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ऐसा नहीं है कि आप आमेर फोर्ट पे जा रहे हैं तो कुछ भी लिख के आ गए अंट शंट, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है। या आप ताजमहल पर गए, आपने कुछ गंदा सा कर दिया, आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी पब्लिक
प्रॉपर्टी का आपने नुकसान पहुंचा दिया, नो। ओके, आपको क्या करना है, अपने इस कंट्री की जो रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है। जैसे हमारी गवर्नमेंट प्रिजर्व कर रही है, फिर हम उन फोर्ट्स को, उन सबको विजिट करते हैं तो हम जान पाते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ करता था इन द एंशिएंट टाइम्स। सो दिस इज ऑल्सो योर ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ योर कंपोजिट कल्चर। अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की, अपने देश की रिच हेरिटेज को आपको प्रोटेक्ट करना है बाय हुक और बाय क्रुक। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, आप जानवर जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो जानवर है या और भी जानवर है जो एक्सटिंक्शन की कतार में है या एक्सटिंक्शन की कतार में नहीं भी है, आप किसी भी एनिमल को किल नहीं कर सकते, किसी भी एनिमल को आप मार नहीं सकते। आपको क्या करना है, अपना नेचुरल एनवायरनमेंट सेव करना है, क्योंकि आपको रहना तो एनवायरनमेंट में ही है। यू विल हैव टू स्टे इन द एनवायरनमेंट ओनली। इफ यू विल पॉल्यूट योर एनवायरनमेंट देन व्हाट विल हैपन। नाउ इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस लॉकडाउन जो कि हमारे साथ इस समय हुआ, इसने क्या किया, पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट था उसको चेंज कर दिया। दिल्ली जो कि स्मॉग से भरा रहता था वो बिल्कुल क्लियरली दिखने लगा। ओके, एंड हवा इतनी प्योर हो गई जितनी कि वो सालों साल नहीं हो पाई। वाई? बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक, नो वन वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर। Okay, only our you can see the corona warriors, or you can say our helpers were out for the help, out for helping us, but the pollution was so low at the stage. Okay, so this is your duty to improve and to protect the natural environment. नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, इम्प्रूव भी करना है, ये आपकी ही ड्यूटी है, ये आपको ही करना है। To develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. एक साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, अपने अंदर इंसानियत एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इंक्वायरी और रिफॉर्म का भी आपके पास राइट है, आरटीआई है। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सरकार से मांग सकते हैं। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ आपने गलत देखा है किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, आप सरकार से आरटीआई के थ्रू आंसर मांग सकते हैं। सो आपको एक साइंटिफिक टेम्पर रखना है, अपने अंदर ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म या जिसे इंसानियत कहते हैं वो रखनी है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्फॉर्म आपके पास है। आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। ओके, नाउ आपको एकता बना के रखनी है, इंटीग्रेट आपको होके रहना है, एंड यू विल हैव टू रिस्पेक्ट योर कल्चर, योर country. Now the next is to safeguard public property. Yes, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहीं पर भी स्पिट कर देते हैं, हम कहीं पर भी कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉरेन कंट्रीज, द रूल्स आर सो स्ट्रिक्ट। तो वहाँ की सड़कें भी क्लीन है, वहाँ के पार्क्स भी क्लीन है, वहाँ के टॉयलेट्स भी क्लीन है, बट हमारे यहाँ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अरे बहुत गंदा है, हम नहीं जा पाएंगे, या देखो कितना गंदा है, कितना लोग गंदा कर देते हैं। बट आप भी तो उनमें से एक हो। आप क्या कर रहे हो इस देश के लिए? क्या आप उसे साफ कर रहे हो? नो, यू आर ओनली क्रिटिसाइजिंग। ओके, आप किसी को ऐसा होते हुए देखते हो, कहीं भी ऐसा होते हुए देखते हो, तो आपकी ड्यूटी, आप कहिए कि आप अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा नहीं करेंगे। बट कौन कहेगा, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो हमारी खुद की तो प्रॉपर्टी है नहीं। बट अगर हमारी प्रॉपर्टी पे कोई कुछ करेगा तो हम डेफिनेटली उसे आंसर करेंगे। बट पब्लिक प्रॉपर्टी से हमें क्या लेना देना? ये हमारी मेंटालिटी हमको चेंज करनी होगी। अगर इस देश को बदलना है तो न्यूज़पेपर पढ़ के ये कहना कि इस देश का क्या होगा से बेटर है आप कुछ करें ताकि इस देश का कुछ हो। समझ गए आप बेटा? आप लोग अभी थोड़े छोटे हो, बट आप ये बात बहुत जल्दी समझ जाओगे कि पहले खुद बदलोगे तो ही आप देश को बदल पाओगे। फर्स्ट लुक इनटू योरसेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग, देन गो एंड क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। डोंट डू द क्रिटिसिज्म ईच एंड एवरी टाइम. Okay, I hope I have given you enough of the information related to this topic. Now next is
to strive towards excellence in all the spheres of individual and collective activity. हमें क्या करना है बेटा? To strive towards excellence in all the spheres of individual and collective activity. हमें हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हमें आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है और इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी को लेकर हमें एक साथ आगे बढ़ना है. दिस इज आवर ड्यूटी. सो वी विल हैव टू डू ऑल दिस ड्यूटी. ओके, सो दीज आर ऑल योर फंडामेंटल ड्यूटीज. आई होप कि आपको समझ आया हो कि एक्चुअल में ये ड्यूटीज है क्या, हमें फॉलो क्यों करनी है, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड if you will follow this, what changes will become, what changes will come in your country. This is very much important for you. Now the next topic is DPSP. Okay, this is the last topic of your chapter, then your chapter will end. Okay, yes, there are certain guidelines laid down in the Indian Constitution which gives the government a road map to work and adhere to the spirit of these principles. हमारी जो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस हैं. ओके, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट को रोड मैप देती हैं कि किस तरीके से वर्क करना है आपको, किस तरीके से आपको स्पिरिट्स को बचाते हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. As the Constitution aims to achieve the ideal of the democratic welfare state, these principles are expected to be kept in mind by the government. कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम करता है किसी भी आइडियल को वो फॉलो करेगा, स्टेट का वेलफेयर करेगा, तो ये प्रिंसिपल्स उसको अपने माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Article 38 of the Indian Constitution states that the state shall strive to promote the welfare of the people. बिल्कुल, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो जो भी उसके पीपल है, जो भी उसके स्टेट के लोग हैं, वो उनके वेलफेयर के बारे में, उनके अच्छाई के बारे में, उनकी खुशी के बारे में सोच कर ही वर्क करे. ओके, The directive principles laid down that the state shall direct its policy in such a way that equal opportunity is given to all the men and women in acquiring adequate means of livelihood. क्या कहा गया है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSP आपको यह सरकार को ये डायरेक्ट करता है कि आपको चाहे वो आदमी हो या औरत हो, मेन हो या विमेन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको लाइवलीहुड मिलना चाहिए. इकोनॉमिक सिस्टम को आपको हाथ में रखना है और अपनी कंट्री को एक वेल्दी कंडीशन में आपको रखना है. यह गाइड करती है हमारी DPSP. It is government's moral duty to follow these principles while formulating policies, but these are not legally binding on the government. क्या है ये? गवर्नमेंट को अपने माइंड में इन चीज़ों को रखकर ही लॉज बनाने चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, बट कोई भी बाध्य नहीं कर सकता गवर्नमेंट को कि वो इन्हें फॉलो करे. दिस इज देयर ओन चॉइस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर चैप्टर. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्यूटिफुल चैप्टर वेयर यू केम टू नो दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमें क्या राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, सेक्युलर कंट्री क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, एंड DPSP क्या होता है. नाउ यू विल राइट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. इनके बारे में आपको लिखना है. दिस इज योर असाइनमेंट फ्रॉम माई साइड. राइट अबाउट the fundamental duties, the fundamental rights. Okay, and note it down fast. And this was your class for today. I hope you liked the class and I hope you enjoyed the class. So I will see you in the next class. Till then, take care of yourself, your parents, everyone who is present at your home. And keep on learning new things. Keep on reading your books. Don't sit like this at your home that you are not doing anything.
दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप स्कूल आएंगे तो बहुत कुछ आपके पास बर्डन लेके नहीं आना है. आपको बिल्कुल बर्डन लेके नहीं आना है. आपको सब कुछ अपना कंप्लीट करते हुए ही स्कूल आना है. ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड and watch all my online sessions, and you can give me feedback also. आप स्कूल कांटेक्ट करके भी फीडबैक दे सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो. टिल देन थैंक यू सो मच अगेन.